So every living organism requires coordination. Coordination means when various parts of the organisms coordinate with each other to perform specific function. पहले एक coordination की. Write down the meaning of coordination. What is coordination in a living organism? What is, ये छोड़ना, अभी ये नहीं लिखना, ये हम बाद में बताएंगे. What is coordination in living organisms? तो इसमें लिखा when different parts or organs of a living organism when different parts or organs of the living organisms work simultaneously to control the specific function of the body, to control the specific function or response of the body is called as coordination. आपस में coordinate करना. ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स में भी coordination is done with the help of various hormones, as I had told you. Coordination is done with the help of various hormones. And I had told you that plants, they also have different hormones, animal के hormones, humans के hormones हमने किए. ठीक है, तो बेटा अगर हम, for example, I am changing my position. This is, I am coming forward, I am going back. So this is movement. This is locomotion. But if I am waving my hand, this is a movement, right? So I am writing on the board. This is a movement. Everybody here, छोड़ दो, copies छोड़ दो, ध्यान दो इधर. Eyes, ears and brain. Coordinate the three things. देखो इस टाइम सीधे होके बैठो, पहले सीधे होके बैठो, बेंच पे ले करके मत बैठो, सीधे होके बैठो. एवरीबडी स्ट्रेट, अपनी बैक स्ट्रेट करो. ठीक है, ऐसे 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 नहीं, सीधे. बी एक्टिव गर्ल्स इन 9th A, बी एक्टिव, सीधे होके बैठो. ठीक है, देखना when your back is straight, spinal cord send messages to the brain to remain active. You know, in the previous time जब लोग गुरुकुल में जाते थे, ठीक है, तो उस टाइम क्या करते थे, जो भी वहां पे गुरुज होते थे वो उनके बालों को, है ना, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, उनके बालों को कहीं ना कहीं बांध देते थे कि उनकी जो कमर है ना वो सीधी रहे, बैक जो है उनकी स्ट्रेट रहे. थोड़ा सा हिलेंगे तो वो उनके बाल जो है वो स्ट्रेच होंगे, खींचेंगे तो दर्द होंगे. तो जब तक वो पढ़ते थे, चाहे 15 मिनट पढ़ते थे, चाहे 20 मिनट, चाहे आधा घंटा, बट they kept their back straight. करके देखो, है ना, तो सीधा बैठना है. जब मेरी बात सुननी है तो बिल्कुल सीधा बैठना है. ठीक है, तो what I am talking that this is movement is not simply locomotion. This is locomotion, but movement is changing position of any organ. For example, I am waving my hand, right? I am writing on the board, right? आप जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी लेग्स को भी स्विंग करते हैं कई बच्चे. दिस इज ऑल्सो ए मूवमेंट, राइट? सो प्लांट्स डू नॉट लोकोमोट, है ना, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इट डजंट मीन दैट दे डोंट शो लोकोमोशन. दे बेंड, their parts bend, their branches they swing, their roots they grow. These are also movements. जो bending है वो एक प्लांट की मूवमेंट है, जो स्विंगिंग है वो एक प्लांट की मूवमेंट है. फूल का, the flower, it opens and sometimes there are some flowers which opens during daytime, close during night time. This is a type of movement.
right? So plants do not show locomotion, but they show movements, and movements are of two types. ठीक है, यहां पे लिखो जरा जल्दी से कि plants do not perform locomotion. Plants do not perform, लिख लो जो नए बच्चे आए हैं अभी वो भी लिख लो जल्दी से. Plants do not perform locomotion as they do not change at their position, as they do not move from one place to another. Plants do not show locomotion as they do not move from one place to another, but they show various movements. Such as bending of plant towards light. ठीक है, तो पहले ये एक चार्ट बनाओ. ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो. थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए और इजी हम बना देते हैं. ग्रोथ मूवमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स. ठीक है, लिख लो. एंड phototropism, bending of plant in response to light. Bending of plant in response to light. Geotropism. ये भी आपने लिखना है. बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स लिख लो तो ज्यादा अच्छा है. प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. Hydrotropism in response to water. Chemotropism in response to chemicals. And thigmotropism, bending of plant parts in response to touch. In response to touch. आ जाओ जल्दी से बैठो बेटे. 9th जी में स्टूडेंट्स जो आए जल्दी से बैठ जाओ. अब आप मुझे बताएंगे. ठीक है, फोटोट्रोपिज्म अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए. अच्छा, पहले क्वेश्चन लिखिए. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल राइट ऑन द क्वेश्चन. ये भी लिख लेना. एक और क्वेश्चन लिखे. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस ग्रोथ मूवमेंट्स इन प्लांट्स. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस growth movements in plants. 9th A Ashita.
आजा बेटा, माइक ऑन करो बच्चे जल्दी से। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ मूवमेंट्स इन प्लांट्स? हाँ जी बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है, जरा ये ठीक कीजिए माइक अपना। ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बैठो बेटा, आंसर इज ऑक्सिन्स, आंसर इज ऑक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाट इज द, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये ऑक्सिन्स वाला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ मूवमेंट्स एंड टर्गर मूवमेंट्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ मूवमेंट्स एंड टर्गर मूवमेंट्स? नाइन्थ बी दिया, नाइन्थ बी दिया, देखो जरा नाइन्थ बी कहां पर बैठी है? दिया गर्ल, द गर्ल दिया, कम नियर माइक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नो दिया इज देयर, ओके। नाइन्थ सी, मनिंदर, नाइन्थ सी मनिंदर, आ जाओ बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी बेटा बोलिए। बेटा डू यू नो व्हाट आर टर्गर, व्हाट डू यू मीन बाय टर्गर? पहले से गुड मॉर्निंग ताकि मुझे पता चले। माइक ठीक करो बेटा। नाइन्थ सी, नाइन्थ सी बेटा, माइक चेक करो, देखो जरा आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। हाँ गुड मॉर्निंग, चलिए अब बताइए मुझे। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टर्गर? हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम नाइन्थ सी? आप बैठो बेटा, आप बैठो। एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम नाइन्थ सी हु नोज द मीनिंग ऑफ टर्गर? किसी भी क्लास में किसी को पता हो, नाइन्थ डी में, नाइन्थ जी में, ए में, बी में, सी में? हाँ बोलिए। The movements that don't involve growth. टर्गर का क्या मतलब है? मूवमेंट छोड़िए, व्हाट डू यू मीन बाय टर्गर? आपको पता है? प्रेशर। वो तो टर्गर प्रेशर होता है ना, वो किस कारण होता है प्रेशर? रीजन क्या है उसका? हाँ जी, एनी अदर गर्ल साइड टेस्टिंग मोमेंट लाउडली। मुझे सिर्फ टर्गर का मतलब बताइए, किससे, किसका रेफरेंस है टर्गर से, किस चीज को रेफर कर रहा है? बेटे टर्गर रेफर्स टू वाटर, पानी, है ना। जब देखो ध्यान से सुनो, ये आपने नाइन्थ में ही पढ़ा है, सेल में। जब वाटर एब्जॉर्ब, सॉरी, सेल एब्जॉर्ब्स वाटर, इट बिकम्स टर्जिड, क्योंकि वहां पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। तो टर्गर रेफर्स टू वाटर, ठीक है, लिखो। टर्गर रेफर्स टू वाटर। सो टर्गर मूवमेंट्स, द मूवमेंट्स ड्यू टू absorption or loss of water are called as turgor movements. The movements in plants, लिखो जरा जल्दी से। The movement in plants due to gain or loss of water are called as turgor movements. Growth movements क्या है? The movements caused due to, the movements caused due to increase in cell size, the movements caused due to increase in cell size, increase in protoplasm are called as growth movements. क्योंकि क्वेश्चन this can definitely come कि what are the differences, क्वेश्चन आ जाता है
differences between turgor movements and growth movements in plants. चलिए मैंने आपको बताया अभी अभी हम लिखेंगे भी कि ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन प्रोटोप्लास्ट. टर्गर मूवमेंट्स आर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वाटर. नाउ नाइन्थ जी में डिंपल. नाइन्थ जी डिंपल, आ जाओ बेटा, माइक ऑन करो. जूम से माइक ऑन करो बेटा पहले. चलिए सिंपल ये बताना है कि विच मूवमेंट्स आर परमानेंट एंड विच प्लांट मूवमेंट्स आर टेम्परेरी. सामने देख के विच प्लांट मूवमेंट्स आर परमानेंट एंड विच आर टेम्परेरी. इधर देखो, सामने देखो, मेरी बात सुनो. मैंने क्या कहा है? टर्गर मूवमेंट्स आर ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ वाटर. Growth movements are due to increase in cell size, due to increase in protoplasm of the cell. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता है, प्रोटीन्स ज्यादा बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन बड़ी होगी, सेल वॉल बड़ी होगी, तब ग्रोथ मूवमेंट्स है. जबकि टर्गर मूवमेंट्स, पानी अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो सेल स्वेल करके, और लूज कर दिया तो सेल श्रिंक करके. यू नो दैट. ठीक है. नॉट टेल मी विच आर परमानेंट, विच आर टेम्परेरी. यस डिम्पल, बताओ फटाफट 1 सेकेंड में. माइक ऑन करो, बाकी कॉपी छोड़ दो. हाँ अच्छा, इधर देख. कितना क्यों सोचते हो? एक सेल का साइज बड़ा हो गया, उसमें बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म बन गया, क्या उसका छोटा हो सकता है सेल साइज? टर्गर मूवमेंट्स आर टेम्परेरी. बिल्कुल ठीक है. दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में पानी एब्जॉर्ब करते हैं, दिन के टाइम में लूज कर देते हैं, फिर शाम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो दीज आर टेम्परेरी. ग्रोथ मूवमेंट्स आर परमानेंट. ठीक है, बैठो. स्टूडेंट्स के क्या है कि भी अच्छा ये तो हमें बताया ही नहीं, ये हम कैसे करें? ठीक है बेटा, चीजें चाहे किसी टीचर ने इनडायरेक्ट बता दी या डायरेक्ट बता दी, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो यू शुड नो. ठीक, तो बनाओ ऐसे कॉलम, लिखो यहां पे ग्रोथ मूवमेंट्स, और दूसरे कॉलम में लिखो टर्गर मूवमेंट्स. ठीक है, यहाँ ग्रोथ मूवमेंट्स लिखिए. caused due to increase in cell size, increase in cell size due to increase in protoplasm of cell, whereas turgor movements are due to gain or loss of water by cells. These are permanent. These are temporary.
growth of cells due to auxins. ग्रोथ ऑफ सेल्स किसके कारण है? ऑक्सिन्स के कारण है। और यहां पे टर्गर मूवमेंट्स ड्यू टू आयन मूवमेंट्स, सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट्स हो रही है। आयन मूवमेंट्स, सोडियम एंड पोटेशियम, इसका गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसके कारण पानी एब्सॉर्ब हो रहा है या लूज हो रहा है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इनमें, जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, phototropic movements, geotropic movements are growth movements, turgor movements are shock movements. ठीक है जी। तो अब 9, अब हम बात करते हैं फोटोट्रॉपी से। ये प्लांट है। अब हम 3 डायरेक्शंस की बात करते हैं, ए, बी एंड सी, 3 डायरेक्शंस। इसकी भी ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन, सी डायरेक्शन। C directional, A direction, D direction. अब in case of, ध्यान से सोचना है और फिर मुझे बताना, सनलाइट यहां से आ रही, इधर सनलाइट यहां से आ रही, और यहां पर सनलाइट इधर से आ रही। So you have to tell me in which direction plant 1 grows, in which direction plant 2 grows, in which direction plant 3 grows. Question is, in which direction plant 1, 2 and 3 grows. ठीक है जी। एंड वाई, वाई चलिए हम बाद में करते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लिखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मतलब सीधा आपसे ना पूछा जाए कि एक्सप्लेन फोटोट्रॉपिज्म, ये डायग्राम दे के 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब मेरे पास आ जाना है 9th डी में से रक्षित। रक्षित इज देयर? यस मैम। हाँ जी, रक्षित आ जा बेटा। अब बताओ मुझे कि
फर्स्ट वाला प्लांट कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में ग्रो करेगा, सेकंड और थर्ड कहाँ पे? प्लांट वन ग्रोथ टुवर्ड्स द पॉइंट सी। प्लांट वन ग्रोथ टुवर्ड्स सी। अच्छा आप बता रहे हो, मैंने नहीं बताया। हाँ, सेकंड प्लांट, टुवर्ड्स पॉइंट ए। सेकंड प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स ए। प्लांट थ्री ग्रोथ टुवर्ड्स पॉइंट बी। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस आप कह सकते हो, लिख लीजिए। प्लांट वन विल गो टुवर्ड्स सी, दैट इज स्ट्रेट। प्लांट वन ग्रो स्ट्रेट। प्लांट टू, it grows towards A. It bends towards A. And plant 3 bends towards B. It bends towards B. और ये सीधा ग्रो करेगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, प्लांट कब बेंडिंग कर रहा है? यहाँ पे तो बेंडिंग हो नहीं रही, इन दोनों में बेंडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि लाइट एक डायरेक्शन से आ रही है। यहाँ पे लाइट ने पूरे प्लांट को एक्सपोज किया है, जबकि यहाँ पे लाइट एक साइड पे पड़ रही। तो यहाँ पे लिखो, बेंडिंग ऑफ या फोटोट्रोपिज्म अकर्स ओनली, राइट डाउन एवरीबॉडी, फोटोट्रोपिज्म occurs if the plant is exposed to, if the plant is exposed to unidirectional light, यूनिडायरेक्शनल लाइट, एक साइड से लाइट आए, पूरा ऊपर से नहीं, उसने तो सारे प्लांट को लाइट दी। जब एक साइड से लाइट आए, देन द प्लांट बेंड्स। ठीक है, हाउ डज द प्लांट बेंड्स, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दे, ऑल्दो आई थिंक आपको आता होगा। कैन एनीबडी टेल मी, डज द लाइट promote synthesis of auxins या inhibit synthesis of auxins? Anybody who knows the answer? क्या लाइट ऑक्सिन के फंक्शन को, ऑक्सिन के सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं कि इनहिबिट करते हैं? यस, कम कम बेटा, 9th डी। यस, आप कह रहे हो लाइट प्रमोट सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स, राइट? ठीक है, जबकि ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेट मी टेल यू, बैठो मैं बताती हूँ। सो एवरीबडी हियर, एवरीबडी, आपको लगता है कि ग्रोथ हार्मोन है तो लाइट ग्रोथ करती है तो ये प्रमोट करती होगी? नहीं, हम थोड़ा सा देखें। जब एक साइड से लाइट आती, ये प्लांट, ठीक है, लाइट जो है वो इधर से आ रही है, थोड़ा सा हम इस तरह से करें। ये जो साइड है प्लांट की, दिस साइड, ये है इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ प्लांट, एंड दिस इज, यहां पे तो सीधी लाइट पड़ी नहीं, सो दिस इज डार्क साइड और शेडेड साइड ऑफ प्लांट। अब क्या हो रहा है,
सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि लाइट inhibits synthesis of auxins. Therefore, third point क्या है? Therefore, auxins concentration means amount, is more on shaded side than illuminated side. Illuminated side से ऑक्सन्स कहां पे आ गए? दैट इज शेडेड साइड पे. शेडेड साइड पे बन भी रहे हैं, इल्यूमिनेटेड साइड पे ऑक्सन्स बन नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा. अब जिस कारण से अगर हम प्लांट का देखें तो देयर इज मोर ग्रोथ ऑन शेडेड साइड देन इल्यूमिनेटेड साइड. देख रहे हो, ये इल्यूमिनेटेड साइड है और ये शेडेड साइड है. तो इससे क्या हुआ है? फोर्थ पॉइंट क्या है? एज ऑक्सिन्स प्रमोट्स ग्रोथ. तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा वहां पे ग्रोथ ज्यादा. दस मोर ग्रोथ ऑन शेडेड साइड. और आपने व्हाट यू हैव ऑब्जर्व द कॉमन ऑब्जर्वेशन व्हेन यू हैव बैग्स ऑन योर शोल्डर्स. आपके इतने भारी भारी बैग, हल्के वाले नहीं, भारी स्कूल बैग्स जब आपके शोल्डर्स पे होते हैं तो सारे बच्चे कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं, राइट? आगे को झुककर. यस और नो? ठीक है ना, आगे को झुक के. तो इसका मतलब जहां पे बोझ ज्यादा होगा, आपने ये भी देखा है कि किसी के कुब निकल आता है ना, किसी के हंच निकल आता है, कुब निकल आता है, तो ग्रोथ कहां पे हो रही है? उसकी बैक में ग्रोथ हो रही है. ठीक है, उसकी यहां पे हड्डी बढ़ जाती है बैक में और वो आगे को झुक जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से प्लांट में आप सोच रहे हो कि यहाँ पे शेडेड साइड पे ज्यादा ग्रोथ हो गई, देयरफॉर प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट. जहां पे ग्रोथ होगी उससे ऑपोजिट साइड पे बेंडिंग होगी. ठीक है, दस मोर ग्रोथ ऑन शेडेड साइड एंड दस एंड देयरफॉर प्लांट bends towards light. ये आपकी एक्सप्लेनेशन है. Why the plant show explain the phenomena of phototropism. This is how the plant bends towards light. Everybody note down this. बुक में दिया जरूर हुआ है बट बच्चे एक तो पढ़ते नहीं हो किताबें और दूसरा बहुत क्लैरिटी से नहीं दिया हुआ. ठीक है जी. और यहां पर आपने थोड़ा सा एक और पॉइंट लिख लेना कि स्टेम shows positive phototropism. Positive means it bends towards light, whereas roots show
नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि उन्होंने ग्रेविटी के लिए शो करना है अपना अफेक्शन, मोर रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी दे हैव टू शो, इसलिए उनका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। डन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं बेटा, दैट इज अगेन दिस इज अ फ्लावर पॉट, ये इसकी रूट्स है जो नीचे को ग्रो कर रही हैं, और ये इसकी स्टेम है। सन ऊपर से है इसलिए ये ऐसे ग्रो कर रही है। अब हमने क्या किया, इस गमले को, इस फ्लावर पॉट को हमने एक स्टैंड लिया और इसमें जो है वो फिक्स कर दिया। प्लांट ऐसे हो गए। इस तरह से विल देयर बी एनी चेंज इन द प्लांट, कि वो ऐसे ही ग्रो करता जाएगा? What will happen after some time? That you will see the roots, it bends towards gravity, नीचे आ जाएंगे, and the stem, the shoot, it bends towards upper side, towards light. ठीक है, तो आपको ये डायग्राम देके आपको कह सकते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि दिस डायग्राम शोज दैट shoot is positively phototropic. It bends towards light. And root, it shows geotropism. ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, इसलिए रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, तो दे ग्रो towards gravity. They grow towards gravity. ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना? These are probable questions. कि what does this diagram shows? This diagram shows that roots are geotropic, they show geotropism, and stem shows phototropism. डायग्राम बनाओ। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म में लिख लीजिए, रूट्स ग्रो टूवर्ड्स द ग्रो टूवर्ड्स वाटर इन द सॉइल, नीचे की तरफ ग्रो कर रही है,
है ना, बट अगर पानी यहाँ पे ज्यादा है तो फिर वो यहाँ पे बेंड कर जाएंगे और फिर वहां पे नीचे ग्रो करना शुरू कर देंगे. So that is growth of the roots towards water is hydrotrophism. Next आ जाता है बेटा chemotrophism. So this is stigma, this is style, this is ovary. The pollen grains, they germinate to form the pollen tube. पहले ध्यान से समझो. And pollen tube always grows towards ovary. ऐसा नहीं है कि पोलन ट्यूब यहां चली जाए या यहां चली जाए, ऐसा नहीं है. पोलन ट्यूब ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स ओवरी. सो दिस शोज कि कोई ऐसे लगता है जैसे ओवरी में कुछ है जो पोलन ट्यूब को खींच रहा है. वो क्या है? दैट आर केमिकल सिक्रेटेड बाय ओवरी विच अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब. ठीक है, दिस इज कीमोट्रोपिज्म. लिखो, chemotropism, that is growth towards chemicals. For example, the pollen tube always grows towards ovary and ovules. The pollen tube always grows towards ovary or ovules as, because, लिख लो बच्चे लिख लो, because ovary secretes certain chemicals. Because ovary secretes certain chemicals that attract pollen tube. That attract pollen tube. और उसके बाद फिर एक एक्सप्लेनेशन आ जाती है थिग्मोट्रोपिज्म. ठीक है, पहले आप ये देखिए. लेट अस से ये एक सपोर्ट है. मनी प्लांट के लिए हमने एक डंडा लगा दिया, एक स्टिक लगा दी जिसपे मनी प्लांट, इट coils around the money plant. Sorry, it coils, the plant of money plant coils around the support. कैसे coiling हो जाती है? ठीक, ये सपोर्ट है. यहां पे दिस इज दिस इज मनी प्लांट. ठीक है, अब जैसे ही ये सपोर्ट के कांटेक्ट में आया, मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा आपको, इसलिए बिल्कुल ये इसके साथ नहीं मैं लगा सकती. जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, मोर ग्रोथ, ये साइड ए है, ये साइड बी है. मोर ग्रोथ ऑन बी साइड, अवे फ्रॉम द सपोर्ट. मोर ग्रोथ यहां पे लिख लो. इन थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म is shown by climbers. Thigmotropism is shown by climbers. सेकेंड पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद तुम्हें सारी समझ आ जाएगी. मोर ग्रोथ, राइट डाउन, मोर ग्रोथ ऑन द साइड अवे फ्रॉम द सपोर्ट. मोर ग्रोथ ऑन द साइड which is away from the growth. अब यहां पे आप देख रहे हो साइड बी में, साइड बी जो है वो अवे फ्रॉम सपोर्ट है, इसलिए मोर ग्रोथ यहां पे है. अगर मोर ग्रोथ यहां पे है, देन बेंडिंग अकर्स टूवर्ड्स ए, तो ये क्लाइंबर इधर बेंड कर गया. ये देख रहे हो, ये ए साइड है, ये बी साइड है. अब कौन सी साइड अवे फ्रॉम सपोर्ट होगी? ए वाली साइड.
थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको और क्लैरिटी से नजर आए। ठीक है, अब कौन सी साइड अवे फ्रॉम क्लाइंबर होगी? ये होगी, यहां पे ज्यादा ग्रोथ होगी, therefore it bends here. now B साइड पे ज्यादा ग्रोथ होएगी, therefore it bends. So region of in climbers, write down another point. In climbers, the region of growth alternates. The region of growth alternates. Therefore, the plant coils around support. Therefore, the plant coils around support. और ये डायग्राम बना जल्दी से, एवरीबडी ड्रॉ दिस डायग्राम, और यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे रीजन ऑफ मोर ग्रोथ, यहाँ भी यही लिखिए, रीजन ऑफ मोर ग्रोथ, रीजन ऑफ मोर ग्रोथ। दिस इज, ठीक है, टाइम हो गया, बस चलिए, बस मैं छोड़ रही हूँ, ये डायग्राम बनाना। दिस इज अबाउट ग्रोथ मूवमेंट्स। टुमारो इज हॉलीडे, परसों जो है हम विद इन 2 मिनट्स टर्गर प्रेशर, टर्गर मूवमेंट डिस्कस करके उसके बाद हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन पे आएंगे। ठीक है जी, आई होप जिसको मूवमेंट समझ में आई है, ग्रोथ मूवमेंट्स, रेज योर हैंड्स। ग्रोथ मूवमेंट्स, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। जिसको नहीं समझ में आई वो मुझसे परसों दोबारा पूछे। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन है, डिसाइडेड है इसमें से आना। बाय बाय।